Hello and welcome to all to this lecture series on basic thermodynamics. This is lecture 6, open system analysis. First of all, I need to tell you कि from this lecture onwards I will try to speak a bit in Hindi also. Okay, so I will mix basically a kind of English and Hindi, and I will try to use a English language. जैसे कि आजकल चल रहा है हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, मैं वही बोलने की कोशिश करूँगा. उससे ये होगा कि जो हिंदी मीडियम के भी अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी इन वीडियो लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं. ठीक है, लिखा हुआ सब कुछ इंग्लिश में रहेगा और मैं हिंदी में थोड़ा बहुत उसको बोलने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत उस चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँगा. ठीक है, क्योंकि हिंदी में बोलने में ये होता है कि इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही चीज़ों को समझ जाते हैं. ठीक है, आई विल ट्राई टू स्पीक बोथ इन हिंदी इन इंग्लिश. ओके, तो लेट अस बिगिन. शुरुआत करते हैं. देखिए, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वर्क, द फ्लो वर्क और द फ्लो एनर्जी. सी व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है. जैसे कि यहाँ पर ये है, दिस इज पी एंड दिस इज पी एंड दिस इज पी माइनस डी पी है. जैसे यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, आपको मैं आई विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, आई विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है. एंड व्हाट वी सी कि यहाँ से जैसे आपका फ्लो शो हो रहा है तो यहाँ से दिस डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस डी एक्स इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये जब इधर को डिस्प्लेस होगा तो ये इस तरफ को डिस्प्लेस होगा. ठीक है, और यहाँ का आपको पता है कि प्रेशर जो आप स्ट्रीम में होगा दैट इज पी, एंड दिस प्रेशर ऑन द डाउन स्ट्रीम विल बी पी माइनस डेल पी. ठीक है, तो आपको पता है कि डेल डब्ल्यू जो वर्क होगा दैट इज पी इंटू ए इंटू डी एक्स, that is P into dV. This is the boundary work or also known as the displacement work or the flow work. ठीक है, और आपको पता है कि this will be P minus del P into ADX, that is P minus del P into dV, that is P into V. आपको simply पता है कि that is the displacement work or the flow work, as I have already told you in the last lecture when we were talking about the definition of enthalpy, that is at H is equal to U plus P, और उसमें जो PV था that is nothing but the displacement work or the flow work. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, then we have this kind of a control volume for the case of an open system. इसमें क्या होता है कि you have a inlet and you have an outlet. आप inlet पे देखेंगे there is a kind of an imaginary piston out here and at the outlet also, और यहाँ पर आप देखेंगे the pressure and area will be P1 A1 and here it will be P2 A2. This is the mass of the fluid that is entering, that is the dm1 imaginary mass, and the imaginary mass that is coming out, that is dm2, and this is the dx1 is the displacement and dx2 is the displacement out at the inlet and at the exit. ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से that the mass entering will be m dot I and the mass leaving will be m dot E, and this Q dot is the mass is the heat flow rate, sorry, the heat flow rate at the inlet, and means that the heat flow rate that is entering into the system, which is by convention taken as positive, and this is the work done. ये है work of the control volume, the rate of work, that is W dot CV, and this is the work out of the system, heat work transfer out of the system, that is also taken positive by according to the convention. ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि these are the properties. This is P1 V1, that is the pressure, volume, velocity, height above the datum. This is the internal energy and this is the enthalpy. These are all properties at the inlet and these are all properties at the exit. ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट पर हम दोनों कंडीशंस पर हम इक्वेशंस डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या होती हैं. ठीक है, फॉर द स्टडी स्टेट एंड फॉर द अनस्टडी स्टेट ओपन सिस्टम के लिए क्या इक्वेशंस यूज होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन की. तो सबसे पहले हमारे पास दो ही कंजर्वेशन है जो हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वन इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करेंगे. तो वी विल सी कि जो मास फ्लो रेट एंटरिंग है दैट इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट लीविंग. स्टडी स्टेट कंडीशन में यही होता है कि द मास फ्लो रेट एंटरिंग इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट लीविंग, इसलिए m डॉट आई इज इक्वल टू m डॉट ई, दैट इज इक्वल टू m डॉट, ये दोनों मास सेम हो गए. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने देखा कि दैट द एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू द एनर्जी एट एग्जिट, दैट इज द एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू द एनर्जी एट एग्जिट. और दीज आर ये सारी की सारी एनर्जी है दैट इज एट द inlet and this is all the energy that is at exit. ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जी आपने ले ली. दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द फ्लो एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द वर्क ट्रांसफर, नहीं सॉरी, दिस इज द हीट ट्रांसफर, और इसी तरीके से ये सारी एनर्जीज एंड दिस इज द वर्क ट्रांसफर. ठीक है, और आप U1 प्लस P1 V1 को इफ़ यू विल कंबाइन तो आपको मिल जाएगा दैट इज H1. ठीक है, दिस इज द एंथैल्पी. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. एंड व्हेन वी विल डिवाइड दिस बाय m, और हम यहाँ पर m डॉट और m डॉट ही लेके चल रहे हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेकन द स्टडी स्टेट कंडीशन by the conservation of mass that m dot I is equal to m dot E is equal to m dot. ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको m डॉट से डिवाइड करेंगे तो दिस q and this w will become small because these are will become the intensive
प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी इक्वेशन को बोला जाता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और ऑल्सो इस स्टेटमेंट को ये भी बोला जाता है स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम अंडर स्टडी स्टेट, ओके। और इसी में अगर हम फर्दर कुछ और सिंप्लीफाई इसको करें, इफ द सिस्टम इज स्टेशनरी एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी चेंज इज जीरो एंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज जीरो, तो देन we will have that h1 plus q dot is equal to h2 plus del w dot cv, हम इतने के साथ लेफ्ट करेंगे, और we will have that del q is equal to dh plus this, okay। और we know that h1 and h2 means we have h2 minus h1 is equal to u2 minus p2 v2 because this is h1 and this is h2 and this is h1, ठीक है। तो h2 minus h1 is equal to u2 minus u1 plus p2 v2 minus p1 v1, ठीक है। ये सारा चीज़ हम यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे, we will see the Bernoulli equation from the steady flow energy equation. We can also derive the Bernoulli equation from the steady flow energy equation, ठीक है। तो उसको किस तरीके से derive करते हैं, देखिए दिस इज द जनरल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एंड व्हेन हम जब इसको अगर एक्सपेंड कर लेते हैं h1 को, तो वी विल गेट u1 प्लस p1 v1 एंड u2 प्लस p2 v2, और इसके लिए कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करनी होंगी टू डिराइव द बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और वो कंडीशंस क्या है, दैट इट शुड बी अ स्टडी स्टेट। पहली चीज़ u1 इक्वल टू u2 यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम इज जीरो एंड द हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। अगर हम ये सारी कंडीशंस का यूज़ करते हैं इन इक्वेशंस में, तो वी आर लेफ्ट विद p1 v1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g z1 इक्वल टू p2 v2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस g z2, ठीक है। और ये v1 इज द, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसको जब इसको हम 1/ρ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1/ρ दैट इज डेंसिटी, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब हम ये देखेंगे कि जब सिस्टम अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, तो हमारी जो डेंसिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल बी ρ1 एंड दिस इज ρ2, ओके। दिस ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ, और यहाँ से दिस इज p1 प्लस ρg प्लस c1 स्क्वायर बाई 2g प्लस z1 इक्वल टू p2 बाई ρg प्लस c2 स्क्वायर बाई 2g। प्लीज मेक अ करेक्शन, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, दिस इज अ 2g, ओके, प्लस z2, एंड दिस इज नोन एज अ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन फॉर द आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स क्योंकि इसमें कोई भी लॉस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दिस इज फॉर द आइडियल फ्लूइड। और आइडियल गैस इक्वेशन हम बेसिकली इसको आइडियल गैस से ही बेसिकली हम इसको आइडियल फ्लूइड के लिए ही हम इसको डिराइव कर रहे हैं, यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ द स्टडी फ्लो प्रोसेसेस, कहाँ पर हम स्टडी फ्लो इक्वेशन को या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमने डिराइव करी है उसकी हेल्प से हम किन किन डिवाइसेस के फंक्शंस को समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोजल और डिफ्यूज़र की, व्हाट इज अ नोजल एंड व्हाट इज अ डिफ्यूज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस, ठीक है। देखिए नोजल क्या होता है, नोजल इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। इसका मतलब यह है कि नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर एनर्जी कम होती है, ठीक है। और डिफ्यूज़र जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करती है एट द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस वही है, जैसे कि स्टेडी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज जीरो एंड द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज जीरो और हीट ट्रांसफर इज जीरो। और ये सारी कंडीशंस अगर हम अपनी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लगाते हैं तो वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग, ठीक है। और ये कंडीशन जो है, दिस इज C1 इज वेरी मच लेस देन C2, दिस इज फॉर द नोजल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा C1 है वो बहुत कम होगा, क्योंकि हमने बताया कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज द कंडीशन स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली फॉर द नोजल। और इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वी आर लेफ्ट विद h1 इक्वल टू h2 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 और c2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h1 माइनस h2 होल रूट, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर द नोजल। हम अगले डिवाइस की बात कर लेंगे, दैट इज अ टरबाइन। देखिए टरबाइन क्या होता है, टरबाइन गिव्स द पॉजिटिव पावर आउटपुट। टरबाइन इज अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस होता है जिससे हमें पॉजिटिव पावर आउटपुट मिलता है, ठीक है। कंडीशंस इसके लिए भी वही है, स्टेडी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो और जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये सारी कंडीशंस व्हेन वी विल अप्लाई टू द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वी आर लेफ्ट विद दिस h1 इक्वल टू h2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम और वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू h1 माइनस h2। अगेन अ वेरी सिमिलर डिवाइस टू टरबाइन दैट इज नोन एज अ कंप्रेसर। उसमें क्या होता है कि वी रिक्वायर अ पावर इनपुट, ठीक है। और कंडीशंस वही है, स्टडी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो एंड द हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो। तो वी आर लेफ्ट विद द सेम कंडीशन दैट h1 इक्वल टू h2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है
कि वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क इनपुट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है विच रिक्वायर्स द पावर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे और वर्क इनपुट निकालेंगे तो इट विल बी H2 माइनस H1। फिर एक डिवाइस और होता है दैट इज नोन एज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होता है, देखिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रेंट पैसेज, ओके, व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रेंट पैसेज का मतलब होता है कि विच प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ restriction or obstruction to the flow of a passage, like a capillary tube or the partially opened valve orifice, porous plug, and there is a significant drop in the pressure। तो क्या होता है कि प्रेशर का ड्रॉप होता है, and this kind of a process is known as a throttling प्रोसेस। इसके लिए कंडीशंस वही है कि स्टडी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो, एंड हीट ट्रांसफर इज जीरो, एंड वर्क ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो अगर इन सारी कंडीशंस को वी अप्लाई इनटू द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो वी आर लेफ्ट विद H1 इक्वल टू H2। तो यहीं से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के, दैट इज इट्स एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, H1 इक्वल टू H2 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एंड दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है थ्रॉटलिंग प्रोसेस का, दैट इज इट इज हाईली इरिवर्सिबल। मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी स्टेट कंडीशन। अब हम अनस्टडी स्टेट कंडीशन की बात कर लेंगे। अनस्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने स्टडी स्टेट कंडीशन में आपको बताया कि उसमें मास कंजर्व होता है, द मास इज कंजर्व्ड, ठीक है। मतलब मास कंजर्व होता है कि आपका जो मास इनलेट में एंटर कर रहा है और जो मास एग्जिट में लीव कर रहा है दैट मास इज सेम, यानी कि आपका कोई भी मास एक्यूमुलेशन एनर्जी एक्यूमुलेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अनस्टडी स्टेट कंडीशन में क्या है कि आपका देखिए मास फ्लो रेट एंटर कर रहा है, मास फ्लो रेट एग्जिट हो रहा है, बट कुछ मास फ्लो रेट इनका जो डिफरेंस होगा दिस विल नॉट बी सेम, और इन दोनों का कुछ जो डिफरेंस होगा वो आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा इनटू द सिस्टम, ठीक है। एंड दिस इज गिवन बाय द dm/dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू m.I माइनस m.E। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो नेट मास ट्रांसफर होगा, जो मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो होगा, यानी कि अगर इन दोनों में से कुछ भी कम या बाकी होगा तो आपका जो मास फ्लो रेट ऑफ द सिस्टम है वो चेंज करता चला जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा, अगर मास फ्लो रेट इनलेट ज़्यादा होगा, एग्जिट कम होगा तो ये इंक्रीज़ करेगा, अगर ये ज़्यादा होगा और ये कम, अगर ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा तो ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। देन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा कि जो एनर्जी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का चेंज होगा और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी रेट एट द इनलेट माइनस द एनर्जी फ्लो रेट एट द एग्जिट, ठीक है। ये एनर्जी फ्लो रेट एट द इनलेट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंड दिस इज द एनर्जी फ्लो रेट एट एग्जिट। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या हो रहा था कि एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू द एनर्जी एट एग्जिट, मतलब जितनी एनर्जी अंदर आ रही थी उतनी एनर्जी बाहर जा रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एनर्जी एट इनलेट माइनस एनर्जी एट एग्जिट विल बी इक्वल टू द एनर्जी दैट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम, ठीक है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल सी दैट द सिस्टम इज स्टेशनरी। अगर सिस्टम हमारा स्टेशनरी होता है और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा कि दिस dE/dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम विल गेट चेंज इनटू du/dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम। क्योंकि मैं आपको पहले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट E इज इक्वल टू, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर जीरो हो जाता है तो दिस टोटल एनर्जी बिकम्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो दिस अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद du/dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू m.I H1 प्लस q डॉट माइनस m.E He माइनस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे इसी में, ये तो पूरी की पूरी बात होगी अनस्टडी स्टेट के बारे में कि किस तरीके से करना है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके क्वेश्चंस आप यू कैन वेरी फ्रीक्वेंटली सी इन अ बुक ऑल्सो एंड इन द एग्जाम्स ऑल्सो द क्वेश्चंस कमिंग ऑन दिस टॉपिक वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बॉटल, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर कोई एक बॉटल है एंड दैट इज बीइंग फिल्ड बाय द पाइपलाइन, आप उसको पाइपलाइन से फिल कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द प्रेशर, टेम्परेचर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। That is the case of a charging and discharging of a bottle. That is a case of, obviously that is a case of unsteady state. Unsteady state का केस होगा ये, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे that I am going to tell you. इसमें भी वही दो कंडीशन सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट वही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करेंगे तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, और इसको हम कर सकते हैं कि दैट इज m.2 माइनस m.1 इज इक्वल टू m.I माइनस m.E, यानी कि कितना मास उसमें एंटर कर रहा है और कितना मास उसमें एग्जिट कर रहा है, वही होगा जो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास का डिफरेंस होगा विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और फिर उसमें दूसरी इक्वेशन हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमें पता है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन जो हम यूज़ कर चुके हैं, जो हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। इसी में जनरली अगर हम बात करते हैं बॉटल चार्जिंग के केस में, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग हमेशा, ऑब्वियस इट विल नॉट बी ऑलवेज बी द केस, बट जनरली इन द केस ऑफ बॉटल चार्जिंग दिस डेल क्यू डॉट, यानी कि हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर होता है जीरो, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन का यूज़ कर लें और वी नो दैट दिस इज इक्वल टू du/dt
within the control volume that will be m dot 2 u2 minus m dot 1 u1 is equal to m dot I hi minus m dot e he। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द बॉटल के केस को वेरी इजीली यू कैन सॉल्व, ठीक है। और इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, देखिए अगर आपको कुछ कंडीशंस में बता दो, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ ये सारी कंडीशंस जो हैं ये किसी स्पेसिफिक केस के लिए ही वैलिड होंगी, जो बताया गया होगा हमेशा ये चीज़ें वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। अगर इनिशियली जो बॉटल है अगर वो इवैक्यूएटेड है, मतलब अगर पहले से एम्प्टी है उसमें कुछ नहीं है, तो देन m1 विल बी इक्वल टू 0। और अगर नथिंग इज एग्जिटिंग, मतलब अगर कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकल रही है उस बॉटल में से या उस कंट्रोल वॉल्यूम में से, तो मास एग्जिट विल बी इक्वल टू 0। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ स्टार्टिंग कंडीशन आपको गिवन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम ऑफ द स्टार्टिंग कंडीशन, तो अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ भी दिया होगा तो यू कैन कैलकुलेट द मास बाय द आइडियल गैस एनर्जी इक्वेशन m1 इक्वल टू p1 v1 अपॉन RT1 और m डॉट i विल बी इक्वल टू p पाइप v इनिशियल अपॉन RT पाइप। ये जो प्रेशर, ये है प्रेशर पाइप का और टेम्परेचर पाइप का, जहाँ से आप इस बॉटल को या इस कंट्रोल वॉल्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और m2 विल भी होगा p2 v2 RT2। जैसे किस तरीके क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं कि आपको बॉटल फिल करनी है, इनिशियल कंडीशन आपको दे दी जाएगी और बताया जाएगा कि आपको बॉटल फिल करनी है इस कंडीशन तक, ताकि उसका प्रेशर ये हो जाए, वॉल्यूम ये हो जाए, टेम्परेचर या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी जाएगी। तो उसके लिए आप यहाँ से m2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा जाए या कहीं की पॉइंट की आपको इनलेट पर एंथैल्पी पूछी जाए, एग्जिट पर एंथैल्पी पूछी जाए, आप इसको यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस विच आर वेरी मच यूजफुल इन फाइंडिंग द क्वेश्चंस। इन स्टेटमेंट का यूज़ करके एक अराउंड 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल में आ चुका है। आई थिंक इन द 11 या 12 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और वो बिल्कुल 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, डेरिवेशन के ऊपर था, और बिल्कुल यही चीज़ें यूज़ करके वो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो जा रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें। और इफ़ यू फाइंड कि these lectures are helping you, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू कैन गेट आवर अपडेट्स। और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप उसको अपने कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इस पर जो आएगा दैट विल बी द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, एंट्रोपी वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर आ रहे हैं, उनको मिस मत कीजिएगा। बाय द टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ गुड डे।